Good morning everyone. Today we are going to discuss topic size and growth of India's population. India is the second most populous country in the world after China with a total population of 121 crore or you can say 1.21 billion according to the census of India 2011. ठीक है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है आपकी जो 121 करोड़ पॉपुलेशन. The population of India is 136 crore in 2019 and the population of India is estimated to be 1.38 billion or you can say 138 crore in 2020. 2020 तक आपकी एस्टिमेटेड है कि 138 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की हो जाएगी. As can be seen from table 1, the growth rate of India's population has not always been very high. ठीक है, अभी टेबल 1 आपको शो करूँगी मैं. आफ्टर दैट उसमें आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन की है इंडिया की वो जितनी अभी है उतनी पहले नहीं थी. हमेशा से ऐसा नहीं था. बिटवीन 1901 and 1951 the average annual growth rate did not exceed 1.33%. ठीक है, 1901 से 1951 के बीच में जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी वो आपकी 1.33% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुई थी. अ मॉडेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, ये मॉडेस्ट ग्रोथ रेट थी आपकी पॉपुलेशन की. इनफैक्ट बिटवीन 1911 एंड 1921 देयर वाज अ नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ. आपके 1911 से 1921 के बीच में नेगेटिव ग्रोथ रेट थी ऑफ 0.03%. This was because of the influenza epidemic during 1918 and 19. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय आपका जो एपिडेमिक थी, आपका इन्फ्लुएंजा, ये डिजीज़, इनके वजह से आपकी जो पॉपुलेशन थी वो आपके नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई थी. विच किल्ड अबाउट 12.5 मिलियन पर्सन और 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. The growth rate of population substantially increased after independence from British rule. ठीक है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट आपकी स्टार्ट हुई ब्रिटिश रूल के बाद. जब हम इंडिपेंडेंस हो गए उसके बाद जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट का ग्राफ था वो बढ़ने लगा, गोइंग अप टू 2.2% ड्यूरिंग 1961 and 1981. Since then, although the annual growth rate has decreased, it remains one of the highest in the developing world. Chart 1 shows the comparative movement of the crude birth rate and death rate. The impact of the demographic transition phase is clearly seen in the graph where they begin to diverge from each other after the decade of 1921 to 1931. Before 1931, both death rate and birth rate were high, whereas after this transitional movement, the death rate fell sharply, but the birth rate only fell slightly. Today, the population of India is very high, but it has not always been high. Growth has been up and down. As you can see in table 1, table 1 shows the population of India and its growth during the 20th century. Here in this table, first column shows year, second column shows total population in million, third shows average annual growth rate in percent, and fourth column shows decadal growth rate. As you can see, in 1901, India's total population was 238 million. Then in 1911, total population was 252 million, and there was average annual growth rate 0.56%, and decadal growth rate 5.8%. Decadal growth rate means आपका जो 10 ईयर का आपका ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग आपका बिटवीन 1901 to 1911. Then you can see in 1921, the total population of India was 251 million.
Here you can compare the population of 1911 and 1921. 252 मिलियन आपकी 1911 में पॉपुलेशन थी, 252 मिलियन, एंड आपकी 21 में ये डिक्रीज हो गई है 251 मिलियन, एंड देयर वाज नेगेटिव एनुअल ग्रोथ रेट दैट वाज -0.03%, एंड डिकेडल ग्रोथ रेट -0.3%. It was due to epidemics, diseases. Then in 1931 population आपकी 279 मिलियन एंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.04. फिर स्लाइटली ये देखेंगे आप, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज होता जा रहा है, 133 मिलियन आपका 1941 में. देन अगेन ये आपका डिक्रीज हुआ, पॉपुलेशन ग्रो हुई बट इतने मच फास्टर रेट में नहीं हुई. तो 1951 में जो आपका पॉपुलेशन इंडिया की 361 मिलियन, एंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है आपका 125. फिर ये आपका इंक्रीज हुआ, 196% आपकी ग्रोथ रेट हुई एनुअल, ये आपके ड्यूरिंग 1961. दैट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन वाज 439 मिलियन. 1971 548 मिलियन, 1981 683, एंड 1991 846 मिलियन. उसमें आपका ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज आप देखेंगे बहुत हाई चले गया था. 1971 में 2.22%, आपका 1981 में 2.20, एंड देन 1991 2.14%. देन आफ्टर 1981 आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुई बहुत स्लाइटली. यू कैन सी इन 1991 डिकेडल ग्रोथ रेट वाज 23.9%, then 2001 21.5%, and then 2011 17.17%. This chart indicates birth rate and death rate in India from 1901 to 2017. Here vertical line shows rate per 1000 population and horizontal line shows years. Blue line indicate birth rate and red line indicate death rate. Now here you can see before 1931 both birth rate and death rate were high, whereas after the transitional movement the death rate fall sharply but the birth rate only fall slightly. The principal reason for the decline in the death rate after 1921 were increased level of control over famines and epidemic diseases. Okay, 1921 के बाद जो आपका डेथ रेट में डिक्लाइन आया उसका जो रीज़न है फेमाइन्स एंड एपिडेमिक डिजीजेस, इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था. ठीक है, आफ्टर 1921. द लेटर कॉज वाज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट वाज एपिडेमिक डिजीजेस. इनके ऊपर जो कंट्रोल किया गया था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. द मेजर एपिडेमिक डिजीजेस in the past were fevers of various sorts, plague, smallpox and cholera. Epidemic means a disease affects the people of a given geographical area at a specific time. एक geographical area में कोई disease बहुत जल्दी आपकी फैल जाती है. ठीक है, इसे एपिडेमिक कहा जाता है. एंड पेंडेमिक, द टर्म पेंडेमिक मीन्स जो आपका पेंडेमिक व्हेन एन एपिडेमिक दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन जोग्राफिकल एरिया बट इज़ मोर वाइड स्प्रेड, नेशनल, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे आपकी जो डिजीज़ आपकी स्प्रेड हो जाती है, इसे पेंडेमिक कहा जाता है. अभी रिसेंटली आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, कोविड-19, it is a pandemic.
But the single biggest epidemic was the influenza epidemic of 1918 and 1919, which killed as many as 125 lakh people, or about 5% of the total population of India at that time. आपको मैंने फिगर 1 में जो पहले चार्ट दिखाया था उसमें आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी. आई टोल्ड यू इट वॉज ड्यू टू एपिडेमिक. तो ये आपका 1918 के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आपका इंडिया में फैला था, जिससे आपके 1.25 लाख जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी, जो कि आपकी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 5% था. इसीलिए उस समय इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में गई थी. Also known as Spanish flu, the influenza pandemic was a global phenomena. See the box below. A pandemic is an epidemic that affects a very wide geographical area. As I told you earlier कि आपके एपिडेमिक और पैंडेमिक में देखो क्या डिफरेंस होता है. एपिडेमिक आपकी वो डिजीज़ होती है जो आपके एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर, आप बोल सकते हो एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के अंदर आपकी स्प्रेड होती है. एंड पैंडेमिक की आपका मोर वाइड स्प्रेड होता है एज़ कम्पेयर टू एपिडेमिक. आपका नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल तक ये आपका स्प्रेड हो जाता है. रिसेंट आपका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी कोविड-19.